we continue with straight lines. Given the fact that straight line is really a huge topic, we need to do, at least we'll try to finish all the concepts in today's class. Okay, so write down the topic, straight lines. No, Rahul, there are certain things we have not done because uh, in ML Agarwal and ISC and all, there are a few more smaller topics. Even for you also it is required. Okay, only 20% left, which was yeah. Let's check it out. Okay, लिखो आज का topic लिखो. How do you find the equation of angular bisector? ध्यान से समझेंगे जी. This is an important part. How to find the equation of angular bisector. Before I tell you how to write down the equation, please understand one thing, that suppose there is a point x1, y1, it falls on the line ax plus by plus c equal to 0, then you can very well write this distance d as ax1 plus by1 plus c divided by, इसका mod है ना, divided by square root of a square plus b square. You remember, distance of a point from another line, the perpendicular distance is given like this. Sir, why did you tell this one? So this one we'll be using here to actually find out the equation of angular bisector. What does this mean? So first of all, understand the meaning of angular bisector. Suppose this is a triangle, these are the two lines. Okay, अगर ये एक green color line यहाँ से मैं drop करूँ such that this is equal to this, so this is also alpha, so this, suppose ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, then AD is called my angular bisector. इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप इक्वेशन के लिए एक चीज समझो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनी पॉइंट से x, y, अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इफ AD इज द एंगुलर बाइसेक्टर, इट मींस अगर मान लो किसी भी पॉइंट से अगर आप यहां पर E कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहां से अगर यहां पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये अगर डिस्टेंस D है तो ये वाला भी डिस्टेंस D होगा, मतलब OE अगर D है तो OF भी D ही होगा. सो एक्चुअली OE विल बिकम इक्वल टू OF. कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे कि मान लो मैं कलर चेंज करता हूं, अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को उठाया, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये रेड कलर का जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होगा. द आइडिया इज, in order to find the equation of the line AD, I will equate the perpendicular distance of any point from the line AD on the arms. सर नहीं समझ में आया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मान लो इस लाइन का इक्वेशन है ax a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. इस लाइन का इक्वेशन लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. कंसिडर ये कोई एंगल है, इसका बाइसेक्टर ये है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा जी? अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई मैं लेता हूं, x, y, तो यहां से यहां के इसका डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस d बोलेंगे, d1 मान लो इसको नाम d2 दे देते हैं, तो d2 क्या लिख सकते हैं? x और y यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस d1 है तो d1 क्या लिखोगे? a1x, अगर ये xy पॉइंट है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर एंड b1 स्क्वायर. बट वी नो दैट, सर ने समझाया कि एंगुलर बाइसेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि हर पॉइंट वो इसके आर्म से इक्विडिस्टेंट होता है. दैट मींस d1 इज एक्चुअली इक्वल टू d2. तो हम लोग एक्चुअली ये जब इक्वेट करते हैं ना, तो हो सकता है ये नेगेटिव भी आ जाए. तो अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग इसमें माइनस लगा देंगे. इट्स एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखेंगे कि
a1x plus b1y plus c1 divided by square root of a1 square plus b1 square, that's equal to plus minus a2x b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 square. ये प्लस माइनस, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे you will get the equation of the angular bisector. There is no need to mug it up. You can understand it like this, right? Okay, if you have understood. Kritika, the sample paper which you had shared, there they had asked one question on angular bisector. Let me ask you a similar one. Find the equation of the bisectors of the angles of the lines. लिखो, एक लाइन है ये, इसका इक्वेशन है 3x plus 4y plus 7 equal to 0. दूसरा लाइन है, लिख लो इसको, 12x plus 5y minus 4 equal to 0. तो इसमें से अब एक एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन चाहिए. सो इक्वेशन ऑफ, लिखो, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइंस. सो क्या करेंगे जी? कंसिडर एनी पॉइंट x, y हियर. इसमें से इसका डिस्टेंस निकाल लो. क्या हो जाएगा? 3x, x मतलब x की जगह x ही रख दोगे, ठीक है? सो 3x plus 4y plus 7 divided by square root of 3 square plus 4 square, that's equal to plus minus, इधर x y ही रख दो, x की जगह सेम, तो क्या हो जाएगा? 12x plus 5y minus 4 divided by square root of 12 square plus 25 square, sorry 5 square. अंडरस्टूड? सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे राहुल, क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 3x plus 4y plus 7 डिवाइडेड बाई, ये 5 हो जाएगा ना जी. दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x plus 5y minus 4 डिवाइडेड बाई 12 and 5, तो आई थिंक 13 निकल जाएगा. देखो, अब एक बार प्लस लेना, दिस थिंग इज इक्वल्स टू प्लस लेना, एक आंसर आएगा. और अगली बार दिस थिंग इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस थिंग, तो एक आंसर आएगा. कैन एनीबॉडी टेल मी प्लस लेने पे कितना आ रहा है? एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, राइट? सो ट्राई इट आउट. सो व्हेन यू टेक plus and minus, you should get two equations, 7x minus 9y minus 37 equals to 0. एक और इक्वेशन आएगा 99x plus 77y plus 71 equal to 0. So these are the two equations of the angular bisector of this line. Actually क्या है ना सर, दो इक्वेशन क्यों आया सर? क्योंकि यार दो एंगल बनता है. देखो, जैसे कि एक ये तो ये बराबर है ना, तो एक ये एंगुलर बाइसेक्टर हुआ रेड कलर का, ठीक है? और एक देखना ब्राउन कलर का, इधर भी तो एक एंगल है, देखो, समझ रहे हो पीयूष? ये वाला भी तो बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट. तो ये जो ब्राउन कलर का लाइन ऐसे जो पास कर रहा है, ये भी तो एक लाइन है. इसी कारण दो इक्वेशन आता है. तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. चलो यार, एक बात मुझे बताओ, इसका स्लोप क्या होगा? m1 अगर इसका नाम देंगे तो आई थिंक 7/9 आएगा, माइनस a/b कर लेना. इसका स्लोप क्या होगा? माइनस 99/77. सो 11 9 11 7. अभी आप नोटिस करो, m1 इंटू m2 क्या है? 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/7 का माइनस, आई थिंक -1 आ रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, ये ब्राउन कलर लाइन एंड ये रेड कलर का जो लाइन है, वो दोनों के बीच का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री है, राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड, ये एंगल 90 डिग्री है. यस, वेरी गुड, दे आर परपेंडिकुलर. ठीक है,
एक प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो सर। बैक द पेज। हाँ, कॉपी कर लो। मैं वही क्वेश्चन देता हूं जो आपके एक सैंपल पेपर में दिया हुआ है। योर क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस। ओके, फाइंड the equation of acute angle bisector of lines. Oh, I think I have done this. Let me just, okay. So लिखो 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and एक लिखो 12x minus 5y minus 8 equal to 0. अच्छा, मैं एक बात जरा समझा दूं आपको. In this question, the question was simply find the equation of angular bisector of these lines. तो मुझे दो लाइन आएगा, इसका मुझे एंगुलर बाइसेक्टर निकालना था, तो मैंने दोनों ही इक्वेशंस निकाल करके इनके सामने रख दिया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. Please understand that whenever two lines will intersect. So महिमा, do you agree कि एक एंगल ऐसा होगा जो एक्यूट होगा. मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा ना, तो थीटा हियर इज एक्यूट. सर एक्यूट का मतलब सर अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, और एक और केस ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो एक और एंगल जो बनेगा वो मान लो अल्फा है, यहां पर अल्फा जो होगा ऑब्ट्यूज होगा. ऑब्ट्यूज का मतलब सर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है. तब आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया. इसमें एक्चुअली दो इक्वेशन आएगा, एक ये वाला लाइन आएगा और एक ये वाला लाइन का इक्वेशन आएगा. मगर मुझे कौन सा चाहिए, ऐसा लाइन चाहिए जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, उसका इक्वेशन चाहिए. उसको कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द टू इक्वेशंस. दोनों ही इक्वेशन मुझे निकाल के बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में डालोगे. Kritika, are you able to understand why we are getting two equations? Because there will be two angular bisectors for a given set of intersecting lines. इसी कारण दो आता है, मगर उसमें एक acute angle को bisect करता है and the other one bisects the obtuse angle. In this question they are asking that equation which bisects the acute angle. तो दोनों लिख करके मत आ जाना, 2 नंबर काट लेगा टीचर. So tell me the two equations fast. जल्दी बनाओ. तो आई थिंक ऐसा हो जाएगा ना जी, 3x minus 4y plus 7 divided by 5 that's equal to, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, बताना अगर कहीं दिक्कत हो, that's equal to plus minus 12x minus 5y minus 8 divided by 13. एक बार इक्वल टू प्लस लोगे एंड, और एक बार इक्वल टू माइनस लोगे. इसको सॉल्व करो, टेल मी वन इक्वेशन. इसको सॉल्व करो, टेल मी द अदर इक्वेशन. जल्दी, एनीबॉडी कैन यू टेल मी द फर्स्ट वन. ये कौन सा है राहुल, फर्स्ट वन द सेकंड वन? फर्स्ट वन सर. ठीक से बनाया तो चॉकलेट वापस ले लूंगा नहीं तो. चलो सर आपने दिया ही नहीं सर अभी तक, तो चलो लिख लेता हूं मैं 21x. एनीबॉडी प्लीज कंफर्म. पीयूष कंफर्म करो, ये इनका फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, जल्दी जल्दी करो भाई,
सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो कल फिर ये टॉपिक करना पड़ेगा। महिमा नहीं बना रही है क्या? Okay, I should not have picked up the question in which you are supposed to solve. I don't know, you guys don't solve. जल्दी बताओ दूसरा. Is this the second one? Others क्या बस मोबाइल कॉल कनेक्ट करके छोड़ दिया है क्या? Okay, whatever. All right, so अब एक्चुअली आंसर आपको दोनों में से एक इक्वेशन को चूज करना है। सर -21x -27 y आ रहा है। और ये प्लस आ रहा है। यस सर। प्लस 131। यस सर। अरे यार, कृतिका, महिमा, you guys there in the class? Okay, if you guys expect me to solve no, तो क्या होगा कि टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे स्क्रीन बहुत छोटा होता है, so I can't solve. कंफर्म करो जल्दी। महिमा is not solving. Three people getting three different values. चलो मैं देख लेता हूँ। I think 60 -25 and plus 52 27 ठीक तो है यार। हाँ, ओके। तो अभी तो किसी ने कंफर्म नहीं किया, आई डोंट नो इसका क्या है। दिस फाइन, ये वाला ठीक है। सेकंड वाला करेक्ट है सर। फर्स्ट वाला में क्या है? कृतिका जो लिख रही वो सही है। सर -21 आया। ये प्लस है, ये प्लस है। राहुल, व्हाट्सएप क्रॉस चेक कर भाई। ओके, तो और ये वाला देखो 91 एंड 80 40 आ जाएगा। 91 41 31 मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। रुको, तो हो जाएगा आपका इधर 39x -52y। बहुत पिटाई पड़ेगी जिसका भी अभी गलती होने वाला है, देख लेना अभी, ठीक है। तो 91, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 60x -25y -40।
तो ये हो जाएगा 21x और ये हो जाएगा प्लस 27y माइनस 131, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना? यस सर। कृतिका बहुत पिटाई पड़ेगी। एंड व्हाट अबाउट महिमा, स्टिल ऑन द वे? आई मीन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। चलो ठीक है, so the thing is, two equations you will get. Now you have to think that in which of these are going to which of these are actually acute angle bisector. दूसरा वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आप क्या करो कि ये जो दो इक्वेशंस आया ना जी, उसमें किसी भी एक को उठा लो, जैसे कि मान लो पहला वाला उठा लो, इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो इसका स्लोप आप क्या हो जाएगा? माइनस 21/27। सो 3 7s एंड 3 9s, इसका स्लोप आ गया। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, दिल पे नहीं लेना, है ना? सो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -7/9। तो अब देखो, जो भी लाइन आपने उठाया है, सपोज दिस लाइन, इसका स्लोप है -7/9। अब आप क्या करो, कोई सा भी एक लाइन उठा लो, उसका स्लोप निकाल लो। सो कंसिडर दिस लाइन, whose slope will be 3/4 माइनस, इसका स्लोप हो जाएगा आपका 3/4। सो एक स्लोप आ गया -7/9, एंड कोई सा भी लाइन उठा लो फ्रॉम दीज टू लाइन्स, इधर दिस और दिस। सपोज आई एम पिकिंग अप दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा स्लोप? 3/4। सो राइट डाउन 3/4। इन दोनों को यूज करके एंगल बिटवीन देम निकाल लो। हाउ डू यू फाइंड द एंगल बिटवीन? मान लो एक लाइन है जिसका स्लोप है -7/9 एंड द अदर लाइन इज देयर whose slope is 3/4। ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर है, और ये इसके बीच का एंगल मैं निकाल रहा हूं, मतलब ये वाला एंगल निकाल रहा हूं। एंगुलर बाइसेक्टर और दैट गिवन लाइन के बीच का एंगल मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा करके निकाल लो। tan थीटा क्या हो जाएगा? -7/9 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 -7/9 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये वाला कितना आ रहा है जी? tan थीटा का वैल्यू देखो जरा, 7 4 28, 9 3 27 प्लस में, राइट? तो ये आपका देखो 55 आ जाएगा ऊपर माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 - 20। ओके, ये तो एनीवे कटने वाला है। ओके, मैं काट नहीं रहा इसको, ठीक है, मैं काट नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा? 1 - 21/36। तो 36 माइनस दिस विल बी 9 6 15, 15/36। तो आई थिंक ये नीचे 15 आ जाएगा, और बाई 36 कट जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 11s एंड 5 3s। तो देखो tan थीटा का वैल्यू आ गया 11/3। अब आपको समझ में आना चाहिए कि tan थीटा इज 11/3। अगर tan थीटा का वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट? इसका मतलब अगर tan थीटा 1 होता है तो थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। एंड tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। सो अगर थीटा 45 पे 1 होता है और ये वाला वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब थीटा जो है 45 से ज्यादा है। अगर ये वाला 45 से ज्यादा है तो ये वाला भी 45 से ज्यादा है, क्योंकि अल्फा अल्फा एंगुलर बाइसेक्टर है ना, तो दोनों 45 से ज्यादा होगा। मान लो 46 अगर हो गया तो 90 से क्रॉस कर जाएगा, राइट? सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, समझे? अगर ये एंगल मेरा थीटा आया, थीटा मतलब ये वाला थीटा आया, अगर ये 45 से ज्यादा है तो ये वाला भी तो 45 से ज्यादा है। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45, दैट मींस 2 थीटा इज ग्रेटर देन 90।
दैट मीन्स दिस इज माई ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा वाला एंगल हो गया। इसका मतलब कि मेरा आंसर ये नहीं होगा, ये वाला होगा। राइट, ओके, वी हैव अंडरस्टूड। थोड़ा लंबा जाएगा जी, बट देन दिस क्वेश्चन विल बी लिटिल बिगर। सर 3/4 कैसे आया था? Oh, 3/4 slope of this line, slope of this line minus a by b minus 3 by minus 4, 3/4 होगा ना? अच्छा, प्रैक्टिस करो जरा। दो लाइन लिखो, 12x minus 5y plus 7 equal to 0 and 3x minus 4y plus 1 equal to 0। क्वेश्चन लिखो, find the bisector of acute angle between the lines above। जो ऊपर मैंने लाइंस दिया हुआ है इसका आराम से बनाओ। आई एम गिविंग यू 8 मिनट्स, ओके। आई हैव एन अर्जेंट कॉल, मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ। आप लोगों को 8 मिनट्स टाइम दिया मैंने, अच्छे से सोच समझ के बनाओ। आई वांट द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट सॉल्विंग।
ओके, फिनिश्ड? पीयूष, व्हाट इज द आंसर? दो इक्वेशंस क्या क्या आया सर? 21x + 27y + 22 = 0, पहला इक्वेशन सर। हाँ, और 27 सेकंड इक्वेशन सर? 21x + 27y + 48 22। इक्वल टू 0। गलत कर रहे हो। 99x - 77y + 22 इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व ये हो जाएगा ना, ये तो सॉल्व हो जाएगा बेसिकली। तो ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ना जी, नहीं 3 से। सो हो जाएगा 7x + 9y + 16 इक्वल टू 0। और ये वाला 11 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 7y + 2 इक्वल टू 0। करेक्ट? ठीक है, ये दो इक्वेशंस आएंगे। 22 होगा ना फर्स्ट वाले में? यस सर। फर्स्ट अरे उसको सॉल्व, उसको 21x आएगा ना ये फर्स्ट वाला। नहीं सर, जो सी वाला है वो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे 22 होगा और सेकंड में 48 होगा। आप उल्टा किया, आप फर्स्ट में 48 लिखे हो, सेकंड में 22 लिखे हो। देखो 12x - 5y + 7 इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज 3। ओहो, माय मिस्टेक, ये मैंने +1 कर दिया है। ओके, मैंने क्वेश्चन में +1 लिख दिया एक्चुअली। बाय एक्चुअल क्वेश्चन इट इज -1। सो तो उसको सर ये मैच कर लो फर्क तो यार। करेगा नहीं ना, क्योंकि सिर्फ ए और बी काम आएगा स्लोप में तो। हाँ, स्लोप में काम आएगा बट इक्वेशन तो बदल जाएगा ना। कोई बात नहीं, इसको जरा -1 कर लो एंड ये इक्वेशंस लिख लो, बिकॉज फिर मैच नहीं कर पाओगे और टाइम फिर है नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करूं। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन ये हो गया बाइसेक्टर का, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 इसका स्लोप निकाल लो m। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -7/9। ठीक है, अब ये एक लाइन है बाइसेक्टर, ब्लैक कलर, ध्यान से समझो। ये एक मैं L1 नाम दे रहा हूं, ये L1। और कोई भी लाइन ले ले रहा हूं जो से ये वाला लाइन, ब्लू कलर लाइन, इसका इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, 12x - 5y + 7 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 12/5 एंड m1 इज ऑलरेडी हाउ मच, -7/5। ध्यान से समझा जी। तो ये जो ब्लू कलर का एक लाइन है ब्लू कलर का, और एक और लाइन होगा जो ब्लू कलर का होगा, जो एक्चुअल लाइंस होंगे, राइट? सो दीज वुड बी द एक्चुअल लाइंस। अब मैं इसमें और इसमें का एंगल निकालूंगा अल्फा। मतलब कैसे निकालेंगे, tan अल्फा। तो हाँ, सही बात है, तो tan अल्फा निकला आप लोग का। स्लोप तो आप लोग का सेम ही आया होगा। -7/9 यूज करो और एक 12/5 यूज करो, तो कितना आया tan अल्फा, -7/9 - 12/5 प्लस 1 -7/9 इंटू 12/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना। -7/9 एंड द अदर इज 12/5। ठीक है, चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट डू यू गेट, सो 7 5s are 35 एंड 12 9s are 108, दोनों ही माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा 143 माइनस में, डिवाइडेड बाय, सो 9 5s are 45 माइनस 12 7s are 84। ठीक है, सो कितना आ जाएगा जी, 45 50 34 39, इज इट 39, यस 39, वो भी आपका माइनस में, और इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो भी वैल्यू आ रहा है 143/39, ये वाला ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देयरफॉर अल्फा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, देयरफॉर 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी ये जो लाइन मैंने लिया है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। दोनों तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आ रहा है,
7/9। हाँ सर निकालिए दूसरा वाला का स्लोप। ये -7/9, ये 9/7, ठीक है, परपेंडिकुलर आ रहा है, डजेंट मैटर, दोनों परपेंडिकुलर आ रहा है, दैट्स फाइन, बट एक्यूट एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? तो ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है, सेकंड वाला, ये वाला आंसर होगा। समझी कृतिका? एनी डाउट? Right, okay, if you've understood. हाँ परपेंडिकुलर है, बट that's not a big deal, ठीक है। एक लास्ट लिख लो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, छोटा सा टॉपिक है, आपके RS अग्रवाल में भी दे रखा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ध्यान से समझना जी इसको। सबसे पहले एक y एक्सिस बनाओ, x एक्सिस बनाओ, ठीक है। यूज अ ब्लैक पेन, टेक दिस y, टेक दिस एज द x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? ये टॉपिक इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लैक कलर में है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ट्रांसलेट कर देता हूँ मतलब कि अभी देखो ये 0,0 पे है इसका ओरिजिन। अगर मैं इसको उठा करके 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया इधर और 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये मेरा मान लो रेड कलर में आ गया। अब जो नया एक्सिस हो गया उसका ओरिजिन शिफ्ट कर गया, समझ रहे हो? ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये मेरा ओरिजिन जो है अब यहाँ पर नया ओरिजिन आ गया। ये ओरिजिन कहाँ पे आ गया जी? मान लो इसका नाम है h, k, सो दिस हैज बीन शिफ्टेड टू h, k। h क्या है यहाँ पे? 2 और k क्या है? 1। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना x एक्सिस, और रेड कलर का जो y एक्सिस है, इसका नाम मैं दे रहा हूं कैपिटल X एक्सिस एंड कैपिटल Y। इस ब्लैक कलर को मैं पढ़ रहा हूं ओल्ड एक्सिस, ओल्ड। ये जो रेड कलर है, दिस इज कॉल्ड माय न्यू एक्सिस। ध्यान से समझना है इसको। अब सपोज देयर वॉज अ पॉइंट, यहां पर बार बार मैं कलर इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको समझने में मुश्किल आएगी, अदरवाइज। देयर वॉज अ पॉइंट, ये मान लो 3 है, ठीक है, ये 2 है, जिसका कोऑर्डिनेट था 3,2। तो ये 3 क्या है? स्मॉल x, स्मॉल y का वैल्यू है 3,2, मतलब ये विथ रेफरेंस टू ओल्ड एक्सिस 3,2। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विथ रेफरेंस टू न्यू एक्सिस कैपिटल X, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है कि यहां से कितना दूरी और यहां से कितना दूरी। तो आप देखो यहां से तो ये एक ही यूनिट है, समझ रहे हो, और यहां से भी ये एक यूनिट है, तो आप बोलोगे ये 1,1 है। ये क्या है? कैपिटल X का वैल्यू कैपिटल Y का वैल्यू। सेम पॉइंट P, इसी का वैल्यू हो जाएगा 1,1 इन द न्यू एक्सिस। तो एक्चुअली जो ओल्ड एक्सिस का वैल्यू होता है वो कैपिटल X प्लस कहां पे ट्रांसलेट कर गया, एंड ये x का वैल्यू हो गया, ये जो y का, जो स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। आप देखो जो पहले 3 था, कैपिटल X क्या आ जाएगा? h का वैल्यू हो गया 2, तो कैपिटल X आ जाएगा 1। देखो आ गया कैपिटल X 1। स्मॉल y कितना था? 1। कैपिटल Y नया एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या हो जाएगा? प्लस k। k कितना है? 1 पे। तो ओल्ड y कितना था? जस्ट अ मिनट, 3, अच्छा 3,2 है ना, ये वाला 3,2 है, सो ये 2,1 हो गया। y का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू तो 2 है ना,
2 है, तो 2 हो गया y और ये हो गया 1, तो यहाँ पर कैपिटल Y क्या आएगा 1, देखो कैपिटल Y 1 आ गया। तो आप ये फॉर्मूला जैसे याद रख सकते हो, ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू प्लस न्यू, ऐसे याद रखो, ओल्ड इज इक्वल्स टू ये न्यू एक्सिस प्लस न्यू पॉइंट, कहाँ पर एक्सिस मूव कर गया। सिमिलरली स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस k, ये आप याद रख सकते हो। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड, I'll give you 1 or 2 questions, you will understand, very easy. कैपिटल y होगा ना? हाँ जी, y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस x। ओ सॉरी, ये वाला y कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको मैं बचपन में ना जब पढ़ता था तो ये मैं भूल जाता था, मैं गलती से ये लिख देता था, देखो जरा, कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस h, ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग। स्मॉल x old is equals to new plus new, similarly old is equals to new plus new, तो याद रखो old is equals to new value plus new value, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा new is equals to old plus new हो जाएगा ना, ये नहीं चलता, याद रखने का तरीका है, otherwise this is a very simple topic, because every time you can't do this much, every time you can't draw it like this, so you have to use the formula or the result, like see the origin is shifted to the point, यानी यहाँ पर h comma k का वैल्यू कितना है 2 -3, by a translation of coordinate axis find the new, मतलब they are asking capital X capital Y का वैल्यू of the point, मतलब small x comma small y is given as 4,7, yes that's correct, so small x is equals to capital X plus h, that means capital X will be small x minus h, small x is 4, h is 2, answer is 2. Similarly capital Y is small y minus k, small y is minus 3, sorry, small y is 7, minus of minus 3 is 10, so answer is 2, 10, right? Okay, Kritika not writing the answer, Rahul, Piyush, Rahul has written, Piyush लिखो। सर मेरा चैट में प्रॉब्लम है। ओके नो प्रॉब्लम, समझ में आया जी? चलो देखो एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनो समझो, इफ द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट दिस, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो क्या हुआ, ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, दैट मींस h कॉमा k इज 3 -1, ये जो स्मॉल x है ये ओल्ड, तो आप स्मॉल x का वैल्यू क्या लिखोगे, कैपिटल X प्लस h, तो कैपिटल X रहने दो, h का वैल्यू लिख दो 3, और स्मॉल y का वैल्यू क्या लिखो, कैपिटल Y प्लस k, कैपिटल Y को लिख दो y, अब प्लस k का वैल्यू कितना है -1, मतलब y -1, बस x का वैल्यू ये पुट कर दो, y का वैल्यू ये पुट कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y -1 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 0, this is the new equation, right? Okay, if you have understood. ठीक है एवरीबॉडी, पीयूष समझ में? यस सर। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एक और प्रैक्टिस करो, आप लोग बनाओ,
RS अग्रवाल से। If the origin shifted to the point this by translation of the axis, the coordinates of the point becomes this. Find the original coordinates of the point. जल्दी। Easy? चल, that's good. Last topic, family of lines. 2 मिनट लगेगा इसको करने में, ध्यान से देखो जी। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है? लिखो, टॉपिक लिखो, फैमिली ऑफ लाइंस। Suppose there is a point, this one line passing through this point, another line passing through this point. इसको हम कहते हैं point of intersection. Actually, there can be infinite number of lines passing through this point of intersection, right? There can be infinite number of lines passing through this point of intersection. So we can define the equation of all of these lines. How? जैसे कि ये ब्लू कलर जो लाइन है, इसका इक्वेशन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये वाला जो लाइन है, इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है? देन लिखो, नोट में लिखो, देन इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस passing through the point of intersection of these two lines. These two lines मतलब कौन सा? ये और ये। क्या होगा? तो कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल। ये वाला इक्वेशन लिख लो। रेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ जी, रेड लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रेड लाइंस ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि रेड लाइन एज वेल एज ब्लू लाइन, सबका सब तो इस सेंटर से पास कर रहा है ना, इस कॉमन पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो सबका इक्वेशन हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस ये वाला लिख दो प्लस k टाइम्स ऑफ ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बस ये किसका इक्वेशन हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू 1 होगा तो इसका इक्वेशन निकल सकता है, k का वैल्यू 3/2 होगा तो इसका इक्वेशन निकल सकता है। समझ रहे हो? सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k, it depends on the value of k। कॉपी कर सर लो। इंटरसेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ? इंटरसेक्शन के बाद लिखा है मैंने कि इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। दीज टू लाइंस मतलब वो जो रेड कलर वाला लाइन है ना, वी आर ऑलमोस्ट डन पीपल। इसको मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। रिमेनिंग क्वेश्चंस यू गाइस कैन प्रैक्टिस एट होम। फैमिली ऑफ लाइंस को यूज कैसे करते हैं समझेंगे। Find the equation of the line drawn through the point of intersection of this and this and passing through this। ये मैंने आप लोग को करवाया है। इसको हम लोग फैमिली ऑफ लाइन से भी बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। आप इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ जो पास करता है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एंड कोई दूसरा पॉइंट 4 - 4, 5 से। तो इस इक्वेशन ऑफ रेड कलर लाइन निकालना है। तो आप लोग कैसे बनाए थे याद है? इसको और इसको सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल दोगे और ये पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकाल दोगे 2 पॉइंट से। इसका और एक बेहतर तरीका क्या है? इक्वेशन ऑफ, लिखो,
family of all lines passing through the point of intersection of L1, इसका नाम दे दो L1, इसका नाम दे दो L2, of L1 and L2, क्या होगा जी वो? 4x minus 3y plus 7 plus k times of ये वाला पोर्शन is equals to 0. सर ये किसका इक्वेशन है? इंटरसेक्शन ऑफ के बाद क्या लिखे सर? इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. ये मान लो L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये हो गया L1 और ये वाला हो गया L2. काम हो चुका है जी. अब आप बताओ ये किसका इक्वेशन है? ये इस रेड कलर लाइन का इक्वेशन है. ये किससे पास कर रहा है? -4, 5 से. मतलब x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू 5 सेटिस्फाई करेगा. यहां से आप k का वैल्यू निकाल लोगे. घर पे प्रैक्टिस करना. k का वैल्यू आई थिंक आएगा 2. घर पे निकालना, मैच कर लेना. k का वैल्यू आएगा 2. अब इस 2 को यहां पुट कर दोगे ना यहां पे, तो ये इक्वेशन आ जाएगा. यही निकालना है. राइट? ओके, इफ यू अंडरस्टूड. दैट्स इट. सर k को कहाँ पुट करना है? बस इसी में. यहाँ जो k लिखे हो ना, ये k में 2 का वैल्यू पुट कर दोगे और दोबारा इसको सजा के लिख देना. सजा के लिखोगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, समय कम है. 8x + 3y + 17 आएगा. क्या आएगा? 8x + 3y + 17 = 0. मैच कर लेना. दिस इज द आंसर. मैच इट. लिखो आई विल मैच. That's it on straight lines. I have covered everything. Just थोड़ा सा और questions practice होता, but time कम है. तो आप बनाओ, कोई डाउट हो तो पूछो. ठीक है? Copied? All right. Thank you. Have a nice day.